Good afternoon, sir. Well, please take a seat. Thank you, sir. क्या नाम है आपका? Sir, Divya Chaudhary. सविता? Divya. दिव्या. Divya, how are you? I'm fine. Fine. Yes. How was the day today? Good. Good. Today is Friday. Today is Wednesday. Wednesday. Yes. Why did you take so much time to think Wednesday? Because I said Friday. That's why. Yes, sir. Okay. You did your secondary. Your marks were 63.6. Higher secondary 58. Graduation आपने JNV से रेगुलर किया? Yes. From KNCW. Yes. Okay. आपके सब्जेक्ट थे पब्लिक एड, इंग्लिश और हिस्ट्री. फिर आपने MA इंग्लिश किया डिपार्टमेंट से. Then you did your B.Ed. Yes. Okay. You have in B.Ed you have written subject English and history. Yes. इंग्लिश हिस्ट्री थोड़ी होती है, वहां तो सब्जेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है. Other 4 subjects are also there, but English and history are also there. These are teaching subjects. Yes, sir. So you must write them teaching subject. You have mentioned English and Hindi. This is the teaching Pedagogy subject. of English or something like that. Fine. You are teaching. Where you are teaching at the moment? Sir, right now I'm not teaching, but You have written professional experience teaching. Yes, sir. I have teaching experience of 7 years in Delhi Public School. Jodhpur. Yes, sir. Which Delhi Public? The Pali Road. Pali Road. 7 years. Yes. Good. Your hobby is cooking and puzzle game. Yes, sir. Solving puzzle. दिव्या जी एक बात बताओ, आप बीएड हो, 7 ईयर का रेप्यूटेड स्कूल का एक्सपीरियंस है, तो व्हाई यू वांट टू कम इन द पुलिस में क्यों आ रही हो रुकी सुखी नौकरी में? 24 घंटे की नौकरी, 24/7, वहां समर वेकेशन है, विंटर ब्रेक है, सब कुछ है. Sir, actually I want to do field work and फील्ड वर्क तो वहां भी कर सकते हो, बच्चों को ले जाओ, घुमाओ फिराओ. no, sir, it's like a private school and we are in a complete one room corner boundary room. So whatever we have to explain, like it's my job timing is like from 7 to 3. You have to go to the school, deliver your lectures, and then you have to back to the work. So I am after a very good school in Jodhpur. Yes, sir. Very good school in Jodhpur. The timing is 7 to 12 only. Now, we would like to join their school or come to the police? No, sir. I just want to say that whatever I'm doing there, I'm just delivering lecture only. That's much. I'm not doing any extra. So like here what you will do? Patrolling, policing, I will just 24 hours. explore. 24 hours. 24 hours service. I will explore the. After marriage you will feel lot of problems. I don't think so. Why? I like to do adventure. Why you are interested in police? Only Yeah. because of the field work. Field work also, plus I'm little adventurous also. I like to do adventurous job. So I want field Then work. why you don't want army? Sir, More adventure than the police. exactly I agree. Daily adventure with the encounter with the terrorist. Why police? Why not army? But till my age is as I am over age, I'm not. That's able why. to- Yes, sir. Okay. Now tell me 3 characteristics which make you a police officer. Okay. Hearing which we say now she is a lady which should be an officer. What are your 3 characteristics? Sir, I like to do work. Everyone likes to do work. No, I like to do work in a team. Team. You have teamwork. Yes. Okay. Second, I believe in my self-confidence, Self-confidence. Okay. and I'm a girl with a positive approach. Girl with a positive approach. Tell me the name of any girl who has a negative approach. So many, sir, but like? individually I don't able Okay. to recall. Now tell me your 3 weaknesses. Hearing which we say no, she should not be officer. So first of all, I am not easily able to say no to anyone because I like to do help. So You sometimes can't say no to anyone. I Good. can't deny. Okay. Second, sometimes I become oversensitive. Oversensitive. And third, I would like to say that somewhere I just feel that I have to do more in that work, but due to that some liabilities or due to some problems, I am not able to perfect that much which perfection I want. I'm so happy, Divya. You are so honest in telling your weaknesses. Most of the time when we say to tell the weaknesses, students hesitate, we don't have any weakness. Now, you can't say no to, you can't say no. Now, someone is giving you bribe, कोई आपको रिश्वत दे रहा है, तो आप तो no कह ही नहीं पाएंगी, ले लेंगी. Generally, I can't say no when someone is asking for me for help, some kind of help they are asking me.
तो दैट टाइम इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू जस्ट से नो, लाइक If कोई someone मदद is- मांग रहा है। मदद मांग रहा है, Yes, आपका एक सिपाही है थाने में, जी सर। उसकी माँ बहुत बीमार है, जी सर। क्रिटिकल है, कुछ नहीं पता 24 घंटे में क्या होगा, फाइन सर। उसने लोन ले लिया, हेल्प ले ली, तब भी उसको 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं फाइन सर। इलाज के लिए। उसने 20,000 रुपया रिश्वत ली, किसी से ले ली, आप थाने में हैं, आपको पता चल गया कि उसने ली है। अब ये तो मामला संवेदनशीलता का भी है, और माँ खुद नहीं लेगा तो माँ मर जाएगी। अब आप क्या करोगे? सर मैं करूंगी कि आपने गलत किया, हम्म। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर वी कांट टेक अ ब्राइब। ओके, वो कह रहा है मैडम मेरी माँ मर रही है। आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, आप अपने कलीग से हेल्प ले सकते हैं, मैं मेरे फ्रेंड्स को बोल के उनको हेल्प करवा सकती हूँ, एक्स्ट्रा हेल्प जो भी हो सकती है। बाय गवर्नमेंट ऑल्सो आई कैन जस्ट आस्क देम टू टुक द एडवांटेज ऑफ चिरंजीवी योजना ऑल्सो। मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप उनकी हेल्प ले लीजिए। आप व्हाट इज चिरंजीवी योजना? सर ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत 10 लाख का, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ा के 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख। ये योजना किस डेट से लागू हुई? सर एग्जैक्टली डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? सर 2 मई 2000। इसको चिरंजीवी क्यों कहते हैं? सर इट इज गिविंग इंश्योरेंस फॉर हेल्थ। तो उससे चिरंजीवी से क्या मतलब हुआ सर? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जैसे जोधपुर। प्रॉपर जोधपुर जी सर। या विलेज? फादर सर्विस में? फादर इज नो। किसी सरकारी महकमे में आपका बीइंग पब्लिक मैन के रूप में किसी महकमे में काम तो पड़ा ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। किसी सरकारी महकमे में, पानी, बिजली, पुलिस, ही होगा, वहाँ क्या महसूस किया होगा उस वर्किंग शैली को लेके? जैसे कहीं मैंने अच्छा फील किया, कहीं मैंने लैक ऑफ पीपल, या फिर मैं बोलूँ थोड़ा सा मुझे अलर्टनेस नहीं मिली। जैसे जो एक रिस्पॉन्स होता है पब्लिक के लिए वो नहीं मिला मुझे। मतलब लोक सेवा का रेस्पॉन्स जो मिलना चाहिए जी पब्लिक के लिए, सर। क्योंकि फॉर दे आर मुझे एम्प्लॉय वहाँ फॉर। लगा कि वो लोग ऐसे बस आइडली बैठे हैं, दे आर नॉट आंसरिंग प्रॉपर्ली। वो लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप उसको आंसर नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है सर। मतलब किसी भी में से हॉस्पिटल चले जाओ, बिजली महकमे में चले जाओ, पानी में चले जाओ, मतलब सब जगह आपकी यही महसूस थी? सब जगह नहीं, पानी की जगह मैंने ये फील किया था। वाटर डिपार्टमेंट में गई थी कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, तो वहाँ पे मेरे को नहीं सुना गया था। और जैसे हॉस्पिटल्स में और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहाँ पे आपको अच्छे से सुना भी जाता है, मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली। पुलिस के संदर्भ में तो कोई काम नहीं पड़ा होगा बीइंग पब्लिक मैन? पड़ा था सर मेरा, जस्ट मुझे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ा वहाँ पे, तो मैं वहाँ गई थी और उस समय उनका नेचर और उनका बहुत अच्छा था। वहाँ पुलिस लाइन के अंदर? मंडोर से। अच्छा, मंडोर थाने जी में। सर। तो मुझे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो जाना पड़ा। नहीं, सामान्य लोगों की पुलिस के प्रति धारणा, नो यू आर सिंपल सिटीजन, क्या अवधारणा है आपके दिमाग में पुलिस की वर्किंग शैली के बारे में? अब जाओगे वो अलग बात है, जैसे एक इमेज क्रिएट होती है ना आदमी की। जैसे मैंने कहा मैं एक पॉजिटिव अप्रोच वाली गर्ल हूँ, तो मुझे हमेशा उनमें एक पॉजिटिव थिंकिंग ही दिखी है। और रियली वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, जो 24/7 आवर्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हो सकता है कभी कभी उनकी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, वो आपको किसी अच्छे तरह से, आप जिस फेस से आप उसको डिलीवर करते हो, कभी कभी आप उसको वो शो ऑफ करवा देते हो कि पुलिस हमारे लिए नाकार है, पुलिस ऐसी है वैसी है। ऐसा नहीं है सर, जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनली बहुत नहीं, अच्छा है। यू आर वेरी राइट, मतलब पुलिस नकारा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे नेगेटिव न्यूज कई बार देखी होगी, आप बीइंग जोधपुर में तो कई बार आती भी रहती है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव इंसान की पहली चीज देखते हैं। नहीं, अपन देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब व्हाट यू फील, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। मैंने हमेशा पुलिस के लिए बहुत अच्छा फील किया, और मुझे हमेशा लगता है कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए आदर्श है और मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। आपने कहा, एक सेकंड सर, आपने कहा कि नेगेटिव को पहले देखते हैं, तो आप तो पॉजिटिव हो, फिर आपको कौन देखेगा? नेगेटिविटी को देखना तो पॉजिटिव को कौन देखेगा फिर? सर हमने नोटिस किया, जैसे न्यूज़पेपर में है, तो नहीं, मेरी इस बात का जवाब दो कि यू आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव को लोग देखते हैं कि कौन बदमाश है, कौन सिपाही खराब है, कौन थानेदार खराब है, आपको तो कोई ध्यान नहीं देगा, ना अथॉरिटी ना कोई यू आर पॉजिटिव। अगर नहीं तो बट मैं मेरा काम जिम्मेदारी से करूंगी, वो मेरे लिए बेस्ट है। कुछ
अभी जोधपुर में जो रिसेंट दंगा हुआ, जी सर। इसे आप वाकई दंगे की श्रेणी में मानेंगे, क्योंकि भविष्य में पुलिस ऑफिसर बनने वाले हैं, या इसको एक बलवा कहेंगे? जानकारी तो आपको है ही ये पूरे घटनाक्रम का। तो मैं बलवा का मतलब नहीं समझ पाई। टेक्निकली समझ नहीं पाएंगे शायद आप। अच्छा, चलिए आपको अब समझना पड़ेगा अगर इस लाइन में जा रहे हैं। चलिए अब और दूसरी बात आपसे करता हूँ। FIR और FR, जी ये दो शब्द पुलिस थानों में अक्सर काम में आते जी हैं, सर। तो इन दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर FIR होती है जो संज्ञेय अपराध होते हैं, उसके लिए आपके लिए रिकॉर्ड की जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। FR जो होती है वो फाइनल रिपोर्ट होती है, और वो पूरा तहकीकात करके जो भी छानबीन करके जो फाइनल रिपोर्ट मैनेज की जाती है उसको FR बोलते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मेरा एक जहन में अक्सर सवाल रहता है कि जो इंपीरियल पुलिस थी, यानी उपनिवेश काल में जो ब्रिटिश पुलिस थी, उनका व्यवहार बहुत एट्रोसियस था, बहुत एट्रोसिटी उन्होंने दिखाई। उसके बाद में हमने क्या काफी कुछ उन्हीं की चीजों को नहीं अपना लिया? चाहे वो रिमांड लेने के मामले में हो, आम जनता के साथ में व्यवहार हो, या IPC की कुछ धाराएं हो, हमने कहीं उसी सिस्टम को अडॉप्ट तो नहीं कर लिया है, या आपको लगता है ठीक है? नहीं सर, आंशिक रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमने उसको फॉलो किया है, हम्म। बट ऐसा नहीं है कि हम उसमें चेंजेस नहीं कर रहे। हम टाइम के साथ में उसमें चेंजेस भी कर रहे हैं, रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं। जैसे कि अभी आपने प्रकाश सिंह जो DGP सर की तरफ से जो रिफॉर्म्स के सजेशन दिए गए हमें, तो हम उनके ऊपर फॉलो भी कर रहे हैं और उनको हम रिफॉर्म में चेंजेस भी कर रहे हैं। जैसे एक मॉडल रिफॉर्म 2006 में पुलिस का हुआ था, जी सर। क्या चेंजेस हुए उसमें? सर उसमें आपको बताया गया, जो हमें सजेशन मिले गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो ये बोले गए थे कि आपको लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग करके चलना चाहिए, क्योंकि पुलिस के ऊपर ऑलरेडी वर्क फोर्स बहुत होता है, वर्क लोड बहुत होता है, तो इन दोनों को अलग मेंटेन करके चलना चाहिए। प्लस उन्होंने ये भी बताया था कि हमें पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस बनाने चाहिए, जहाँ तक मैं समझ पाऊँ। For sure, I just assume that you might have read about General Dyer event of Jallianwala Bagh. यस सर। Had you been the police officer under Mr. Dyer, and you are an Indian, and you very well know that the audience gathered here are also Indian. General Dyer says you to fire on the Indians, Yes, and you are under General Dyer. You are also an Indian. Seeing that all are Indians sitting before you, there are some women, there are some children as well. What exactly you would do? Go into that flashback situation of past. fine sir. If I would means if I am there in that past time, so I would just say that I would follow my seniors, what he's according to like what he is offering to me and what he is ordering to me, I have to follow that only. No empathy at all for the children, women. So because that time he is my senior, so I have to follow him. Then you will be condemned very much like General Dyer, the same way. Sir, He was according fired. to that, He was fired soon I after. know sir, but according to that condition and that particular situation, I am there. If so, I have to do that only. I have no other option also, sir. Okay, difference between CRPC and IPC. These are two different laws, or it is intermingled. So they are, we can't say it's intermingled, but we can say that it's IPC, that is Indian Penal Code, that in that which all the we can say that all the how the crime has taken the all the we can say in Hindi that प्रक्रिया जो भी है वो उसमें दी जाती है, and दंड संहिता CRPC में मेंशन है. Who is father of English poetry? So not sure, but Geoffrey Chaucer. Can you name some of the compositions of Geoffrey Chaucer? So not able to recall. Sorry. Okay. Your hobby is cooking. Yes, sir. What do you cook? I like to cook all the dishes, but especially veg I like to prepare. मॉम की हेल्प कराती हो खाना बनाने में? Yes, sir. खाना बनाना हमारे कल्चर में लेडीज की हॉबी है या पार्ट ऑफ द ड्यूटी है या पार्ट ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Sir, in my family, I would like to say it's just a hobby, because Mama always used to cook, but whenever we need to cook something, so अगर शादी के बाद फिर हॉबी को कन्वर्ट करना पड़ गया फिर क्या करोगे? that would be turned into the condition. कंडीशंस. Yes, sir. सबसे बेस्ट क्या बनाते हैं? The paneer, पनीर. sabji. पनीर तो हर कई तरीके का होता है. So, exactly, sir. But I would like to cook all the dishes of paneer. ओके. पजल गेम क्या है? So solving any puzzle game like Sudoku, generally work Bailey, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है.
Okay, all the best. Thank you so much. एक Thank you. You are attending classes in the morning? सर एक सवाल, जरूर सर. Sir, please. ह्यूमन एट्रोसिटी शब्द सुना होगा आपने, मानो औरतों के प्रति अत्याचार, इसके बारे में सुना तो होगा ही है, मतलब लीगली तो नहीं बता पाओगे, बट ये दहेज प्रताड़ना के मामले या के साथ में और ये क्या समाज में ये घटनाएं वाकई मतलब बीइंग सिटीजन आप महसूस करते हो ये घटनाएं है, स्पेशली ह्यूमन एट्रोसिटी से मेरा अभिप्राय है जैसे स्पेशली दहेज प्रताड़ना समाज में है, अत्याचार टाइप. दहेज अत्याचार है, घरेलू हिंसा है, और इसी तरह से एक जो नया उत्पीड़न से संबंधित पोक्सो का एक एक्ट आया है, तो क्या आप बीइंग ए गर्ल आप अपने समाज में महसूस करते हैं ये ऑफेंस हो रहे हैं? Exactly, sir. आप क्या करोगे बीइंग ए पुलिस अधिकारी? जैसे दहेज प्रताड़ना है 498A के खैर IPC से तो आप सीख जाओगे जब उसमें चले जाओगे, बट व्हाट यू फील आज की तारीख में आप जो ऐसी घटना अगर आपने अपने परिवार से या रिश्तेदार से मित्र से कहीं से अगर ऐसी कोई संज्ञान में है आपके? तो मेरा नहीं सुनी हो पड़ोस से, जी सर, रिश्तेदारी से, कहीं से ऐसा जी सर है, मतलब आई कहीं संज्ञान में आपके? जी सर. दैट इज रियल और फॉल्स? True. आप इसमें सुधार के लिए आप अपनी तरफ से आप सपोज यू सेलेक्ट, तो आप इसमें इसको किस रूप में इसको मतलब मैं क्या क्या करूँगी? क्या करोगे आप उस ह्यूमन एट्रोसिटी के लिए? सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी ये अत्याचार हो रहे हैं वो सबसे बड़ा उसका जो रीजन है वो एजुकेशन है. लड़कियों को एजुकेशन कम मिल रही है. आज भी हम देखें तो हकीकत तो यही है कि एजुकेशन की वजह से उनको अपने राइट्स और मूल्य के बारे में पता नहीं है. जब उनको उस चीज का ही पता नहीं है तो डेफिनेटली वो उसके लिए लड़ने की भी कैपेबिलिटीज नहीं रखती है. सेकंड थिंग, वो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट होती है मेल पे, कि पैसे के आर्थिक रूप से वो मेल पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होने की वजह से वो मेल पे डिपेंड होती है. तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो वो इस चीज में भी वो डिसीजन नहीं ले पाती. थर्ड, उनका ये होता है कि एक समाज क्या बोलेगा, उनका ये भी परसेप्शन रहता है, चाहे लड़का छोड़े या लड़की छोड़े या दोनों में से कुछ भी करे तो गलत हमेशा एक लड़की को माना जाता है. तो उनका ये भी रहता है कि समाज से वो डर के कारण वो आगे नहीं आ पाती, वो बता नहीं पाती. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वुमेन से अटैच हूँ. जैसे अभी अपन कह रहे हैं हम 21वीं सदी में चले गए, जैसे जी. ओवरऑल मतलब हमका मतलब वी नॉट फॉर इंडिविजुअल बट सोसाइटी, आज की तारीख में यदि ये कलंक अगर समाज पे हैं, ये कलंक ही कहेंगे इसको, तभी तो कानून बना है, तो फिर हमारी 21वीं शताब्दी में जाना मेरे ख्याल से कोई मायना नहीं रखता है. इट इज राइट? ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कलंक सर क्या बात करते हो? मतलब आज की तारीख में यदि दहेज प्रताड़ना के लिए अगर स्त्री की ऊपर अत्याचार होते हैं, मतलब जी सर. तो अपनी बहन हो, बेटी हो, अपना ही समाज है भाई, आफ्टर ऑल तो समाज से ही होता है ना. जी. तो मतलब व्हाट वी फील यार, जिसके ऊपर गुजरती है वो क्या फील करता होगा? सर, मैं एक बड़ा रेशियो बोलूंगी तो मैं यही बोलूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट आ रहा है और लड़कियां आगे आ रही है और बहुत अच्छा भी कर रही है. तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है. मतलब अपन आशावादी दृष्टिकोण से जी इसको सर, देखते. जी सर. ठीक है. Thank you, sir.